Dear students, welcome to my third lecture on organometallic compounds. In organometallic compounds, first we discuss what are organometallic compounds, what type of bond is present in them, and their reactivity. Then we started with Grignard reagent, which are organomagnesium halides. In this Grignard reagent, so far we have discussed about its preparation and chemical properties, which are nucleophilic addition reaction and nucleophilic substitution reactions. Therefore, Grignard reagent mainly undergo nucleophilic substitution or addition reaction because the alkyl or aryl group present in Grignard reagent is nucleophile. It acts as nucleophile RMgx. Mg is having slightly positive charge and R, carbon in R will have slightly negative charge. So it is a base or nucleophile. We have discussed in nucleophilic addition reaction, the addition of Grignard reagent across carbon double bond O or C double bond S or C triple bond N will take place. Now, in addition of this Grignard reagent across carbonyl functional group, formation of primary, secondary and tertiary alcohol take place. Further, we discuss reaction of this Grignard reagent with acid chlorides and esters, leading to formation of secondary and tertiary alcohols. So, with acid anhydride, which is formed when two molecules of acid, a carboxylic acid, are heated in presence of some dehydrating agent like P2O5, loss of water take place and formation of acid anhydride take place. So, it contains CO group, which is polar in nature. This is acetic anhydride obtained from heating acetic acid. So, in this one of the CO group, you can say both are polar in nature. The R group, methyl magnesium bromide we have taken, it is nucleophile having slightly negative charge and it will attack carbonyl carbon which is having slightly positive charge and is electron deficient. Then shifting of इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन टेक प्लेस एंड MgBr जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा O के साथ, तो एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा एसीटोन. तो आप देख सकते हैं कि जो एसिड एनहाइड्राइड्स हैं वो एसीटोन का फॉर्मेशन करते हैं. कब? जब हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक्सेस में ना लिया हो, तो इक्विमोलर अमाउंट एसिड एनहाइड्राइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लेंगे तो हमें जो मेन प्रोडक्ट है एसीटोन या कीटोन हमें मिलता है और इसके साथ हमारे को मिलेगा मैग्नीशियम एसीटेट ब्रोमाइड. अगर हम एक्सेस में लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो कीटोन क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, यहाँ पे फिर से CO ग्रुप प्रेजेंट है तो एडिशन रिएक्शन फिर से होगा. तो सेकंड मोल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उसमें से CH3 कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और MgBr जो है O के साथ अटैच हो जाएगा. तो दो मिथाइल ग्रुप पहले थे, तीसरा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, तो एडिशन प्रोडक्ट जो होगा उसमें 3 मिथाइल ग्रुप हो गए जो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे H आ जाएगा, OH बन जाएगा एंड MgBr OH की फॉर्मेशन होगी. सो यू विल बी हैविंग बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड मेन प्रोडक्ट नाउ विल बी tertiary alcohol, tertiary butyl alcohol here. So again you can see like acid chloride or esters, we can have
acetone, ketones or tertiary alcohol depending upon the amount of the ratio of these compounds and Grignard reagent. If ratio is 1:1, then ketone will be formed. If it is 1:2, then this alcohol, tertiary alcohol will be the main product. Next comes reaction with HCN. CN जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड N. तो जब हम HCN के साथ करेंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है. तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा सी पे. ये भी पोलर बॉन्ड है, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, तो ये अपनी तरफ शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहेगा. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे ये नेगेटिवली चार्ज मिथाइल ग्रुप जो है अटैक करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस पे MgBr जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी. सो यू विल बी गेटिंग CH3 CH from here and this C double bond N and MgR. फिर इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो है MgBr OH मिलेगा, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्लस ये जो है C डबल बॉन्ड NH हो जाएगा. एल्डी एमीन कहेंगे हम इसे. एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे जो है एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी. हियर यू कैन सी एस्टल्डिहाइड इज फॉर्म अलोंग विद अमोनिया. तो जब हम HCN का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलता है. जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप होगा उसके हिसाब से हमें एल्डिहाइड मिलेगा. अगर ये CH3 है तो यहाँ पे हमें एस्टल्डिहाइड मिलेगा. अगर ये C2H5 होगा तो यहाँ पे CH3CH2 हो जाएगा. 3 कार्बन एटम वाला प्रोपियोनो एल्डिहाइड या प्रोपेनल मिलेगा. इन दिस वे यू कैन गेट एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट formaldehyde. Next comes reaction with alkyl nitrile. The formation of ketone take place in this reaction. Here we have taken methyl cyanide या acetonitrile. This reacts with Grignard reagent in presence of dry ether. तो यहाँ पे जो CH3 है it will attack C of CN group, shifting of pi electron on nitrogen and attachment of MgBr on nitrogen and CH3 on carbon will take place. So addition product will be formed which on acid hydrolysis forms ketamine and basic magnesium hydroxide, which on further hydrolysis gives, you can see here ketone is being formed and here two methyl groups are attached to carbonyl group, so it is acetone and ammonia is formed. So in this way with alkyl nitrile we will get ketones as the main product. So aldehyde with HCN and ketone with RCN or alkyl nitrile, you can get ketones. The next reaction is reaction with ethyl chloroformate, that is formation of ester. It is ethyl, अगर यहाँ पे H होता तो ये ethyl formate था, तो H की जगह Cl आ गया तो it becomes ethyl chloroformate. इसको हम CH3 MgBr के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं. CH3 कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, तो जो CH3 है ये C के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा कार्बोनिल कार्बन की, और MgBr जो है वो O पे जुड़ जाएगा. ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा. अब क्या होगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेकअप होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इधर शिफ्ट कर जाएगा और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और Cl will leave as chloride ion. So there will be formation of ethyl acetate now. CH3 C double bond O
and OC2H5, and there is formation of MgBrCl, मैग्नीशियम क्लोरोब्रोमाइड। तो इस तरह से एस्टर की फॉर्मेशन भी हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। आप क्या करते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, जो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे H लग जाएगा, ROH बन जाएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल देगा प्लस MgOH देगा। We have taken example of ethyl magnesium bromide. Addition of oxygen dry ether की प्रेजेंस में करने पे हमें इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है, जो एसिड हाइड्रोलिसिस पे देगा। यहाँ पे H आ जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। इट इज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है ये, प्लस बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। इसी तरह से देखिए एडिशन ऑफ सल्फर, थायो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा इसमें, या थायोल्स हम कहेंगे। वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सल्फर जब हम ऐड करेंगे तो ये एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, जो एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे हमें इथेन थायोल प्लस बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड देगा। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में दो C डबल बॉन्ड O होते हैं, तो एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हो सकती है। ये न्यूक्लियोफाइलिक पार्ट जो है इसमें CH3, ये वन ऑफ द बॉन्ड्स जो है CO उन पे अटैक करेगा, शिफ्टिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन विल टेक प्लेस and MgBr get attached to one of the oxygen and CH3 get attached to carbon atom. In this you will be having CH3COO MgBr, magnesium acetate bromide. Then on acid hydrolysis it will give acetic acid CH3C double bond O OH and hydroxy magnesium bromide. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं या रिएक्शन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए जो है, जो भी हम रिएक्टेंट्स वगैरह लेंगे या जब भी रिएक्शन करेंगे, जो एटमॉस्फेयर यूज करेंगे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एटसेट्रा, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बीइंग हाईली reactive will react with them, so they must be avoided. Next is reaction with sulfur dioxide. ये रिएक्शन भी बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में दो S डबल बॉन्ड O होते हैं और सल्फिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। We have taken example of reaction between sulfur dioxide and methyl magnesium bromide. तो मिथाइल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये जो पॉजिटिव जो है स्लाइटली पॉजिटिव सल्फर इस पे अटैक करेगा। ये जो SO बॉन्ड है पोलर है, ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज रहेगा और सल्फर के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 सल्फर पे अटैक करेगा और शिफ्ट हो जाएंगे वन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन। तो CH3 सल्फर पे अटैच हो गया और O के साथ MgBr अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस यहाँ पे H आ जाएगा, तो वी गेट CH3S डबल बॉन्ड OH, मीथेन सल्फिनिक एसिड प्लस बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो दिस वे यू गेट सल्फिनिक एसिड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइथाइनिक एसिड टेक प्लेस। तो CS2 में भी दो डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड S पोलर बॉन्ड है। अब कार्बन के कंपैरिजन में सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो सल्फर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगी, जबकि कार्बन जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कार्बन पे अटैक करेगा
और जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ सल्फर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मिथाइल जो है कार्बन से अटैच हो गया, यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया है, तो MgI जो है सल्फर के साथ अटैच होकर ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। अगेन एसिड हाइड्रोलिसिस की जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग डाइथाइनिक एसिटिक एसिड। यहाँ 2 सल्फर आ गए तो डाइथायो वर्ड यूज किया गया है, डाइथाइनिक एसिटिक एसिड, एंड बेसिक मैग्नीशियम आयोडाइड इज फॉर्म। तो हमें डाइथाइनिक एसिड भी जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से मिल जाता है। एंड लास्टली फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। ये बनते हैं एल्काइल साइनाइड रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड विच हैज फार्मूला CnCl, और Cn में ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो क्या होगा, इस कार्बन पे Cn की कार्बन पे अब C बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N जो है पोलर बॉन्ड है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहेगा, जबकि कार्बन जो है स्लाइटली पॉजिटिव रहेगी। तो इथाइल ग्रुप जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये C पे अटैक करेगा और Cl का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो C2H5 Cn के साथ अटैच हो गया और MgClBr की फॉर्मेशन होगी। दिस इज इथाइल साइनाइड और यू कैन कॉल इट प्रोपेन नाइट्रेट। तो इस तरह से आपके पास एल्काइल साइनाइड। तो आपने देखा केमिकल रिएक्शन से कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कार्बन इंट्रोड्यूस हम कर देते हैं कंपाउंड के अंदर, तो इससे ऑलमोस्ट सभी तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हमें मिल जाते हैं। तो उनकी सिंथेसिस, इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जैसा कि एल्काइल हैलाइड्स में होता है। वो भी ऐसे ही कंपाउंड है जो ऑलमोस्ट जिनसे हम कोई भी दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर किए हैं, जैसे एल्केन है, हायर एल्कीन्स बनाते हैं, हायर एल्काइन भी बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल हमें मिलते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम रिएक्शन C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कंपाउंड से करते हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स हो गए, एस्टर्स हो गए, या फिर जो है एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड होते हैं। फिर हमें कार्बोनिल कंपाउंड भी मिलते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन जो हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हमें मिल सकते हैं। इसके बाद हमें दूसरे कंपाउंड जैसे एल्काइल आयोडाइड है, यहाँ पे क्या हमने देखा है रिएक्शंस में कि एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को हम एल्काइल हाइडाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनकी रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उनसे फॉर्मेशन करवा के आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा के, इसी तरह से ईथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, नाइट्रिल्स, थायोल, सल्फिनिक एसिड, डाइथाइनिक एसिड के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जैसे लेड के हैं टेट्राइथाइल लेड, कैडमियम के डाई एल्काइल कैडमियम हो गया, डाई एल्काइल जिंक वगैरह हो गए, टेट्रा एल्काइल सिलिकॉन या टेट्रा एल्काइल टिन वगैरह की फॉर्मेशन भी हम करवा सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक। तो इन खूबियों के साथ जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने जब इसको सिंथेसाइज किया था, तो विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। फ्रॉम 1901 टू 2019, 2020 का अभी तक दिया नहीं गया, इन सालों में 111 बार केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है, जो 184 पीपल्स को मिला है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के लिए 1912 में विक्टर ग्रिग्नार्ड को मिला था, और 1973 में आप देख सकते हैं 1973 में अर्नेस्ट ओटो फिशर और जेफरी विल्किंस को
ऑर्गन मेटेलिक्स में सैंडविच कंपाउंड के लिए बनाने के लिए अगेन इनको ऑर्गेनोमेटेलिक्स की स्टडी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। और इंडियन जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वेंकटरमन रामाकृष्णन, उनको 2009 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम की स्टडी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ही इज द ओनली इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि कुछ लोगों को ज्यादातर केमिस्ट्री में जो थे, केमिस्ट्री के अलावा किसी और फील्ड में भी नोबेल प्राइज मिले हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग है फ्रेडरिक सेंगर, उनको केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल प्राइज मिला। 1958 में इंसुलिन की स्टडी के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज किया था उन्होंने, और 1980 में उनमें न्यूक्लिक एसिड पे रिसर्च करने के लिए जो है, उसमें जो बेस का अरेंजमेंट है उसके लिए, सीक्वेंस के बेस सीक्वेंस की स्टडी के लिए नोबेल प्राइज फिर से मिला था। मैरी क्यूरी को 1903 में फिजिक्स में मिला था और केमिस्ट्री में 1911 में मिला। उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। इसके अलावा लाइनस पॉलिंग जो है, उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड पे बहुत सारा काम किया था और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर जो है, उनकी एप्लीकेशन जो है केमिकल बॉन्ड की नेचर स्टडी की थी और उसकी एप्लीकेशन जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अप्लाई की थी। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए मिला था और 1962 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। और फिजिक्स में 1956 और 1972 में जॉन बार्डीन को नोबेल प्राइज ट्वाइस मिला। तो आप देख सकते हैं ओनली 4 पर्सन हैं जिनको 2-2 बार नोबेल प्राइज मिला। तो इन इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आज का लेक्चर फिनिश करती हूँ। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।